Hello guys, we are now study class 8 mathematics chapter number 16, and we could also discuss here chapter number 16 point exercise 16.1 question number 5. The question number 5 is that find the side of a cube whose surface area is 5400 square centimeter. We are given that surface area. Question number 5, surface area of cube equal to 5400 square centimeter. 5400 square centimeter surface area of cube is given. We could understand that total surface area means 6a square. A is the side of cube 5400. Here a square equal to 5400 upon 6. A square to 6 9 is 54. 900. 900 is the square of plus minus 30 का whole square. Here a equal to plus minus 30. तो side of cube आ गया plus minus 30. We could also take the length in positive. We could also take length in positive. So a equal to plus 30 centimeter. Plus 30 centimeter. So the side of the cube is plus 30 centimeter. Okay. Now we could also discuss question number 6. The question number 6 is that we also erase that question. The question number 6 is that two cubes of 8 centimeter each. दो cubes हैं. There are two cubes. 8 centimeter of each. We are here discussing about two cubes. Eight centimeter of each. These are the cubes. 8 centimeter of each. These are the two cubes. 8 centimeter of each. This is one 8 centimeter and this is another one 8 centimeter. The breadth is also 8 centimeter and the height is also 8 centimeter. Then the length will be L equal to 16 centimeter. Okay, two cubes are placed jointly in a row. Find the ratio of totals. Two cubes 8 centimeter is joined to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Then L is not equal to B equal to H, so it is a cuboid. This figure is a cuboid. So surface area of cuboid, we know the formula that surface area of cuboid. Surface area of cuboid means total surface area of cuboid. Surface area of cuboid का मतलब TSA of cuboid. TSA of cuboid. TSA of cuboid is 2 bracket में LB plus BH plus HL. You know that
the length is 16 centimeter, 2 bracket में 16 into breadth is 8 plus 8 into 8 plus 8 into 16. We could also solve this question by 16 area 128 plus 64 plus 128. 128 plus 128 256. 256 plus 64. This means this is equal to 640 11 over 12 2 carry 1 112 2 over 3 320 equal to 640 centimeter square. Total surface area cuboid equal to 640 centimeter square. The answer is 640 centimeter square. This is the question number 6 of exercise 16.1. Exercise 16.1. The next question is that question number 7. Then question number 7 is similar to the question number 6. We raised that question, that solution. The question number 7 is also similar type. We know the dimensions of the cube. This is that two equal cubes यानी क्यूब्स का मतलब इसके साइड क्या हो ए हो. क्यूब्स के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी होगा. दिस फॉर्म क्यूबॉइड द लेंथ इक्वल टू 2a and breadth equal to a and height equal to also a. This is height and this is breadth. Okay. Then we want to know the ratio of cuboid to that of the surface area of cube. So ratio surface area of cuboid, surface area, total surface area of cuboid, total surface area cuboid upon total surface area TSA of two cubes. We know the formula of TSA of cuboid. 2 bracket में LB plus BH plus HL. This is 6a square plus 6a square equal to 2 bracket में L into B 2a into A, 2a into A plus B into H, A into A plus H into A into 2a. This is 6 or 6, 12 a square. These are the similar quantities, so we also add to them. This is 2a into a square, 2 into 2a square plus a square plus 2a square upon 12a square. This 2 6 are 12. This is 2 to 4 over 5, 5a square upon 6a square, a square cancel out, equal to 5 by 6. The ratio is 5:6. Okay, this is the solution of question number 7, exercise 16.1 solution. So you could also write down this solution is very important for your annual examination. So try to understand the concepts of this question. Next question is that we also erase this question. The figure is that फिगर को हम लोग मेंटेन रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज द क्वेश्चन. Find the area of a cardboard. Mohit painted a box of length 2.5 meter. This length is 2.5 meter. This is also a box 2.5 meter. Length is 2.5 meter. Breadth is 2 meter.
This is 2 meter. This is the breadth, and this is the height, and height is 1 meter. Height is 1 meter. We let that this is length, this is breadth, and this is height. This is a cuboidal shape of a box. How much area did he cover if he painted all except the bottom of the box? How much area did he cover if he painted all except the bottom of the box? तो कह रहा है कि अगर हम इसके बॉटम को अगर पेंट ना करें तो कितना एरिया ये कवर करेगा। तो बॉटम वाला जो एरिया होगा, हमको अगर इसकी बात करें, बॉटम वाले एरिया को हम लोग टोटल सरफेस एरिया से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, उतना एरिया हमारा क्या करेगा, पेंट करेगा। ओके, तो एरिया ऑफ एरिया बाय मोहित पेंटेड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस, ये देखो ये एरिया, दिस एरिया इज द लोअर मोस्ट एरिया ऑफ दिस बॉक्स, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ, तो माइनस एल इंटू बी, एक्सेप्ट इफ all the surfaces of this cuboidal box is painted. So the answer is that 2 bracket में L into B 2.5 into B 2 plus BH 2.5 into 1 plus HL 1 into 2.5 minus L into B 2.5 into 2. Okay, we are here written that 2.5 to the 5 plus 2.5 plus 2.5 minus 2.5 into 5 5, this is 5, 2.5 2.5 10 to the 20 minus 5 equal to 15 meter square area is painted. इतना एरिया कवर किया। यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग रखे हैं, b हमारा 2 है, तो दिस इज 2 आएगा, दिस इज 2, देन 2.5 2 into 5 to 7 to 9.5 minus 5 equal to 19 minus 5 equal to 14 meter square is area is painted. This is the right answer. हम लोग वैल्यू यहाँ पे b का 2.5 रखे थे, जो कि इनकरेक्ट था। यहाँ 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो यहाँ से हमारा 19 मीटर स्क्वायर आएगा माइनस 5 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर एंड 14 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना पेंट करेगा, 14 मीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड 9. Now we should also discuss the question number 9. The question number 9 is that question number 9, find the area of a cardboard required to make an open box of length 28 meter
breadth 0.5 meter and height 0.2 meter. So this is the cardboard box and its length is, we know its length is 28 centimeter. 28 centimeter. Breadth is 0.5 meter in 50 centimeter and height is 0.2 meter in 20 centimeter. यहाँ हम चेंज करेंगे 0.5 को मीटर को सेंटीमीटर में. 0.5 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर and 0.2 meter we also multiply into 100. 0.2 into 100, 20 centimeter. Okay, so we also write length in centimeter, breadth is also centimeter and height is also in centimeter. Okay, now we could also discuss about area of the cardboard. Area of the cardboard means total surface area. टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पे. टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ कार्डबोर्ड. एरिया ऑफ कार्डबोर्ड. तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हमको निकालना है इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HF. 2 ब्रैकेट में L इंटू B 28 इंटू B 50 सेंटीमीटर प्लस BH 50 इंटू H 20 प्लस HL 20 इंटू 28. दिस इज इक्वल टू 4 5 10 14 1400 प्लस 5 10 1000 प्लस 28 56 560 1400 प्लस 1000 प्लस 560 2400 2400 प्लस 560 2 into 0 6 9 2960 and this is also 2000. Now the solution is that 2000, 2 6 are 12, 2 carry 1, 2 9 18 19 9 5 से 2 5 से 1 अब 2 में 4 1 5 5920 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ ओपन बॉक्स बनाने की बात की है. ओपन बॉक्स ऊपर वाला खुला रहेगा यानी L इंटू बी माइनस L इंटू बी माइनस L इंटू बी. L तुम्हारा माइनस L इंटू बी की बात करेंगे. ओपन बॉक्स है तो ऊपर वाला खुला होगा, इसमें कोई कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो L इंटू बी, L तुम्हारा है 28 इंटू बी, बी तुम्हारा 50 है. तो एक चीज हमारा घट जाएगा 28
560 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 560 माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 560 माइनस होगा इसमें से, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, माइनस 560 करते हैं, आएगा हमारे पास आंसर 0, 6 से 3 का 0, 5 से 4, 2400, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 485, ओपन बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 लिखेंगे ना, या 5 6 नहीं होगा, यहाँ होगा 28 इंटू 50, 28 इंटू 50 क्या है हमारे पास 1400, 1400 माइनस 1400 करेंगे, माइनस 1400, तो यहाँ से माइनस होगा माइनस 1400, क्या आ जाएगा 5920 माइनस 1400 इक्वल टू 0, 2 से 0 जा 2, यहाँ पे 9 में से 4 जा 5, या 5 में से 1 जा 4, 4520 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4520 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर। यहाँ बात किया था ओपन कार्डबोर्ड का, ओपन बॉक्स का, ओपन में ये खाली रहेंगे, ये सब भरे रहेंगे, ये सब भरे रहेंगे, सारे पार्ट्स भरे रहेंगे, सारे पार्ट्स भरे रहेंगे, बस ऊपर वाला ओपन रहेगा, क्या रहेगा ओपन रहेगा। सब कार्डबोर्ड के बने हैं, ऊपर ऊपर रखने के लिए जगह होना चाहिए, ये भी बॉक्स हमारे पास जैसे खाली बॉक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम whose length, width and height are 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब फोर वॉल्स की बात करते हैं तो हम लोगों के पास एक रूम है, डिवाइडल रूम है हमारे पास, फोर वॉल्स का मतलब हो गया लेटरल सरफेस एरिया, हमें फर्श और लेटरल सरफेस एरिया यानी जिसके हम लोग लिटाए हैं वो नहीं निकालना है, हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10, फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम whose length, width and height 8 मीटर 6 मीटर and 5 मीटर। दिस इज 8 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है हमको, ये वाला एरिया निकालना है, इधर वाला एरिया निकालना है। तो फोर्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ रूम, फोर वॉल्स ऑफ रूम, तो फोर वॉल्स ऑफ रूम निकालने के लिए हमको 2 ब्रैकेट में, ये वॉल है एक सामने वाला वॉल है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ 2 इंटू और ब्रीथ 6, लेंथ ये लेंथ इंटू ये वाला हाइट 8 इंटू 5 प्लस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे लेटरल सरफेस एरिया वाला, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L तुम्हारा लेंथ 8 मीटर प्लस ब्रीथ है 6 मीटर, एच है 5 मीटर, तो 2 ब्रैकेट में 8 से 14 इंटू 5, 2 इंटू 14 पचे 70, 70, 140 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे फोर वॉल्स का। 10 नंबर क्वेश्चन है 140 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है इग्नोरिंग द रोड्स डोर्स विंडोज एंड ओपनिंग्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ 7 पर स्क्वायर मीटर। 7 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारे पास हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसमें डोर और खिड़कियों की बात किया है कि नहीं किया है, तो कोई भी डोर और खिड़की नहीं लगी यहाँ पे, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 140
इंटू 7 7 7 7 के 28 के 8 और 2 7 में 7 2 9 980 रुपीज। कितना जाएगा? 980 रुपीज लगेगा हमको व्हाइट वॉश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। A cuboid has total surface area 86 square centimeter 86 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 86। मान लो यही क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ L है, ब्रीथ B है और हाइट H है। ओके, क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया। इस लेटरल सरफेस एरिया दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। एरिया ऑफ द बेस निकालना है तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एंड लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। अब देखो ये इसका डिफरेंस ही क्या करेगा, नीचे का सरफेस एरिया आएगा, इसके ऊपर का सरफेस एरिया आएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसी को हम लोग हाफ कर देंगे। तो हमारे पास दिया गया है, ये कितना दिया है 86 और दिस इज 32, 86 एंड 32। तो हम लोग लिख सकते हैं इनका डिफरेंस, तो नीचे का जो एरिया होगा एल इंटू बी, 2 LB। इसका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस इक्वल टू हमारे पास आएगा 86 माइनस 32। डिफरेंस आ जाएगा 6 से 2 जाओ 4, 8 से 3 जाओ 5, इसका हाफ। ये जो आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है, ये नीचे का और ऊपर का आया हुआ है। तो 2 2 2 जाओ 4, 2 7 जाओ 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया हुआ 27 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से एक बात करना है, जो हमारे पास टीएफसी होता है और उसका डिफरेंस होता है, तो जिसके अगेंस्ट लिखाते हैं ये वाला और इसके ऊपर वाला जस्ट हमको इसमें नहीं होता है, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालने के बाद से उसको 2 से डिवाइड किया, हमको नीचे वाला एरिया आ गया, यही हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इसको राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमारे पास। द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 टाइम्स इज हाइट। तो लेंथ हमारे पास दिया है 3h, ओके, एंड ब्रीथ इज 1/2 टाइम्स, 1:1/2 टाइम्स ऑफ हाइट दिया हुआ है। तो b को निकाल लेंगे, 2 1 जा 2 1 3, 3/2 h हो जाएगा। और h 12h है, तो ये हमारे पास l इक्वल टू दिया हुआ है 3h, b इक्वल टू 3/2h, 3/2h और दिस इज h, ओके। The cost of whitewashing of walls at the rate of 1/5 meter is 260. Find the dimension of the room. Cost of whitewashing. जो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आएगा
तो इसका जो टोटल इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा उसमें हम लोग रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वही उतना ही रुपीज होगा। तो डायमेंशन हमको निकालना है, यहाँ से एच आ जाएगा, फिर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच इंटू 1.75 1.5। देखो जो हमारे पास इसके वाल्स का वाइट वाशिंग करते हैं, अब ये नहीं कहा है कि इसका रूफ का वाइट वाशिंग होगा या नहीं होगा, इसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग केवल वाल्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये किसके बराबर है, कितना है ये 216 के बराबर है। ये हमारे पास दिया गया है 2 इंटू एल। एल दिया हुआ है 3h, बी दिया हुआ है 3/2h एंड एच स्वयं है इंटू 0.5 इंटू 216। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 6 9h/2 इंटू एच इंटू 1.5 इक्वल टू 216। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 9h² इंटू 1.5 इक्वल टू 216। यहाँ से ले जाएंगे h² हमारे पास आ जाएगा, h² इक्वल टू 216 अपॉन 9 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, h² इक्वल टू ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 2160 अपॉन 9 इंटू 15। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 या 21, 3 2 6 और 0 3 5 या 15। फिर से h² इक्वल टू आ जाएगा 720 अपॉन 9 इंटू 5। यहाँ सॉल्व करते हैं, h² इक्वल टू 720 अपॉन 9 इंटू 5, 9 8 जाओ 9 8 72, h² इक्वल टू 80/5। h² क्या जाएगा, 5 4 जा 5, 5 6 जा 30। h² इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +-4 का होल स्क्वायर। h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +-4। h आ गया हमारे पास +-4, h इक्वल टू हो जाएगा +4, क्योंकि हाइट हम किसमें लेते हैं, प्लस में लेते हैं, +4 मीटर हो जाएगा हमारे पास। मीटर मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। जो भी हो यूनिट लिखिए यहाँ पे, मीटर या न्यूटन नहीं दिया है तो यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से वो निकाल सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 3 इंटू 4 12 यूनिट। ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ब्रिथ 3/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 6 यूनिट। और हमारे पास हाइट आ जाएगा h, यही है हमारे पास 4 यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट। ये हो गया आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप लिख सकते हैं, एक बार इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। 13 नंबर सवाल दिया गया है हमारे पास।
12 नंबर, 11 नंबर हुआ था, 12 नंबर सवाल है। 12 ये था सवाल, ये 13 नंबर सवाल दिया है हमारे पास, 13 नंबर क्वेश्चन करना है। द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ द वॉल 46 मीटर इन हाइट इज इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द रूम। देखो यहाँ पे पेरीमीटर, जो वॉल के नीचे वाला पेरीमीटर दिया गया हमारे पास, इसका पेरीमीटर, और इसी का हम लोग अगर हाइट निकाल दे तो वही तुम्हारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच होता है। अब इसका हाफ कर देंगे हमारा, और यही लेटरल सरफेस एरिया है, और ये जो लेटरल सरफेस एरिया होता है यही क्या होता है, वॉल्स का एरिया होता है, ठीक है। और वॉल हाइट पे है, देखो हाइट पे है, ठीक है, ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, ये है एल इंटू बी, ये है बी इंटू एच, एल इंटू बी, ये डबल डबल में है, तो ये सारा चीज क्या हो, यही क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल ऑफ रूम, एरिया वॉल, वॉल्स ऑफ ए रूम, ऑफ अ रूम। जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल ऑफ अ रूम होता है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है यह निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया है, 2 ब्रैकेट में एल कितना दिया है, ये तुम्हारा दे दिया है एल प्लस बी पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी का वैल्यू दे दिया है हमारे पास, कितना दिया है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, लास्ट में से मल्टीप्लाई की है, ये वाली वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, 46 मीटर। तो 46 इंटू एच, एच हमारे पास कितना दिया है, 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 46 इंटू 3.5, 35 से 46 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 30 का 16, फिर 30, 5 को 5 को 20, 3 23, 3 से 18 का 88 लेट, 3 को 12 13, जीरो, 8 से 11 के हासिल 3 को 5 6, 16 से 10 हो गया, 1610, एक डिजिट बाद जो लगाएंगे तो 161 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 121 मीटर स्क्वायर। आंसर में भी यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। A laboratory is 9 meter long, 8 meter broad and 6 meter height. It has 2 doors. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है। सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, सेम चीज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेबोरेटरी ऑफ 9 मीटर लॉन्ग, तो 9 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर ब्रॉड है, 8 मीटर ब्रॉड है, और 6 मीटर हाइट, 6 मीटर हाइट। इसमें 2 डोर्स लगे हुए हैं जिसके साइज इतना इतना है, 4 विंडोज लगे हुए हैं इतने साइज के, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो विंडो और डोर्स का पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ, वॉल पे ही लगे होंगे तो यहाँ लगा होगा 2 डोर, एक यहाँ डोर, एक यहाँ डोर, ये मान लो, ये हम मिटा रहे हैं इसको, हम लोग लगाए थे, डोर्स लगते हैं घरों में, उसके बाद खिड़कियां लगती हैं, यहाँ एक डोर लगा हुआ है, मान लो यहाँ एक डोर लगा हुआ है, इधर 2 खिड़कियां लगी हुई हैं, 2 खिड़कियां इधर लगी हुई है, मान लो एक खिड़की इधर भी लगा हुआ है, 2 खिड़की इधर भी लगा हुआ है। तो इसको व्हाइट वॉशिंग करते समय इसको हम लोग व्हाइट वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। ये खिड़की है, विंडो है, विंडो, ये भी विंडो है, ये एक विंडो है, और एक ये विंडो है, और ये वॉल है, डोर है, डी डबल वार डोर, दिस इज आल्सो डोर। तो इसका एरिया हम लोग हटा देंगे टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया में से। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिख दोगे डायरेक्ट, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स इक्वल टू, पहले एरिया ऑफ वॉल निकाल लो,
तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो 2 L तुम्हारा 9 है प्लस बी तुम्हारा 8 है इंटू 6, 9 8 17, 17 2 34 गुणे 6, 6 24 24 में 4 हासिल 2, 36 18 2 20, तो 2004। एरिया ऑफ वॉल्स या डोर्स एंड विंडोज, तो एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डोर, दो डोर लगा हुआ है तो 2 इंटू 3 इंटू 1.5 का लगा हुआ है, प्लस 4 हमारे पास विंडोज लगे हुए हैं, कितने कितने के 1.5 इंटू 1 के, ये हो जाएगा इसका इसका मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 1.5 टू 3, 3 3 9 प्लस 4 25 20 को 16 हासिल 2, 4 4 ये 6, 15 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया फॉर वाइट वॉशिंग लिखोगे, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, तो एरिया फॉर वाइट वॉशिंग कितना होगा 204 माइनस 15, ये हो जाएगा 14, 9 5 14 होता है, यहाँ 9 में से 8 हो गया 189 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग होगा कितना होगा, इतना एरिया हमारा बचा हुआ खिड़की और दरवाजे के बाद से, उसमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है इसमें 1.75, तो 189 इंटू 1.75, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे 189 175, 5 45 5 4 5 40 44 4 5 5 4 9 7 9 3 3 हासिल 6 7 60 56 और 4 8 2 62 को 2 हासिल 6 7 9 7 6 13 1 9 9 1 8 8 1 8 5 4 3 7 9 9 18 20 को 16 हासिल 2 8 11 2 13 को 3 हासिल 1 3 3 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 330752, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, रुपीज आ जाएगा 330 रुपीज और 75 पैसे। ये सेम आंसर आया हुआ है। यहाँ पर देखना हमको एरिया ऑफ वाल्स निकालना है, वाल्स में भी हमारा तो डोर लगा हुआ है, ये डोर है, ये 4 खिड़कियां लगा है, इनका एरिया हम लोगों ने ऐड कर लिया, यहाँ पे आया 15 मीटर स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, जितना बचा हुआ पार्ट और डोर्स और एरिया को हम लोग व्हाइट वॉश नहीं करते, इसलिए जितना बचा हुआ पार्ट इतना एरिया है इसको व्हाइट वॉश करना है, इसमें 1.75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है, तो ये RS में आ गया 30.75। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is the exact answer given in the your question, your answer sheet. So we are discussing about question number 15. This is the last question of 16.1. So last question of 16.1. Sohail wants to paint a 4 walls of a room having dimension itna itna. From each can be paint 96 meters, 96 square meter. तो कह रहा है 96 मीटर स्क्वायर, एक कैन से 96 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है, तो कितने कैंस की रिक्वायरमेंट, तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया, इतना लेटरल सरफेस एरिया आएगा उसमें 96 से डिवाइड कर देंगे, तो हाउ मेनी कैंस, कैंस कैन बी रिक्वायर्ड, कैंस क्वेश्चन नंबर 15 है, कैंस कैन बी रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे इक्वल टू एरिया ऑफ walls upon area painted by one cane, area painted
ये INT repainted by one cane। एक केन में जितना एरिया पेंट होगा अपान टोटल एरिया में से एक केन से जितना उतना नंबर ऑफ केन आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H अपान एक केन से 96 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा है। L हमको दिया गया इसमें डायमेंशन 20 इंटू 12 20, ये ब्रेथ इक्वल टू 12 दिया है और हाइट इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर दिया है, दिस इज मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B 20 प्लस B 12 इंटू H 6 दिया हुआ है अपान 96, कट कर लेंगे, 6 करने 6 4 करके 16 टाइम में कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ से ले लेंगे 20 10 30 32 हो गया, 32 बटे 8 हो गया, 8 से को 32, 4 केन्स आर रिक्वायर्ड, 4 केन्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट। हाँ तो गाइस ये एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गया।